जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्रभात फिजिक्स 11 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वो है एक सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ होता है। इसका रेडियस है क्या ना, आर रेडियस है। सपोज एक पार्टिकल इस पाथ में कंस्टेंट वेलोसिटी रे रिवर्स करता है, मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी ना ना, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड इसका मतलब क्या होता है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करता है, कांस्टेंट स्पीड में रिवल्स करता है। तो कांस्टेंट स्पीड मीन्स, स्पीड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डिरेक्शन। डिरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है। It does not produce acceleration. कांस्टेंट मोशन बट कांस्टेंट स्पीड रे पार्टिकल मूव कले acceleration produce होगा। But when a particle travel in a straight path, travel in a straight path, एक पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, इस स्ट्रेट पाथ ए टू बी कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज होता है? तो स्पीड तो है ना, कांस्टेंट स्पीड जाऊँगी, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। यह v और u सेम होता है कांस्टेंट स्पीड, तो 0/t इक्वल 0, एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता है। दिस कंसेप्ट when a particle moving in a circular path with constant speed, in each and every point it changes its direction. Each and every point it changes its direction. If direction change, velocity change. That this motion undergo a acceleration motion. This motion is undergo the accelerated motion. This acceleration only due to change of direction, and this acceleration is known as centripetal acceleration. This acceleration is known as centripetal acceleration. तो टॉपिक क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, द स्पीड कांस्टेंट स्पीड रे मूव करछि, बट डायरेक्शन चेंज होछि। डायरेक्शन चेंज ले वेलोसिटी चेंज होछि, वेलोसिटी चेंज ले एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होछि। एंड दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच एक्टिंग along the radius toward the center, which acting along the radius toward the center. This is centripetal acceleration. This is centripetal acceleration. The topic is now centripetal acceleration. Acceleration products due to change of direction, and the particle moving in circular path with constant speed
or the magnitude of the velocity is constant. Okay, so one by one we discuss this topic. The first one is uniform circular motion means a particle revolves in a particle moving in a circular track with constant speed. With constant speed. Particle moving in a circular path with a constant speed. Topic is over. The particle moving with a circular path in constant speed. That means with constant speed means speed is the magnitude of velocity. The motion of minute hand around the clock example ହେଇପାରିବ. Other example uniform speed ରେ ଯାଉଥିବ. The magnitude of the velocity constant ହେବ. Circular path ରେ move କରୁଥିବ. This motion is uniform circular motion. Okay. तो topic की आगू हवा. Some term connected with circular motion. The first one is angular displacement. सर क्या है angular displacement? Angular displacement theta. The angle subtended by radius vector at center. कैसे होता है भाई? वो है एक रेडियस वेक्टर, वो है आर. This is the del theta, small angle. Del S, the linear velocity. Angle subtended by a radius vector at center. This is the arc. This is the radius. This is the angular displacement. This is the angular displacement. Angle subtended by radius vector at center. तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एंगल दिस इज डेल थीटा आर्क बाय रेडियस. आर्क क्या होता है भाई? डेल थीटा डेल एस बाय आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और थीटा इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस. This is the formula of angular displacement. एंगल का फॉर्मूला होता है. तो ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? तो होगा आरडी रेडियन और आरटी. बट यूनिट डायमेंशन क्या होता है भाई? एल बाय एल, m0, l0, t0. No dimension, but having some unit. So angle is a physical quantity which has having no dimension but a unit. We measure the angle in radian or degree. ऐसा unit है radian. तो that's a great concept. यहाँ लिखता हूं मैं क्या है? The relation between linear displacement and angular displacement. क्या है? linear displacement और angular displacement के बीच में रिलेशन क्या होता है? This is the angular displacement equal to क्या है? linear displacement by radius. तो क्रॉस है. This is the linear displacement equal to angular displacement into क्या है भाई? radius. This is the great relation. The great relation between linear displacement and angular displacement. We write in this list the first relation क्या है? linear displacement क्या है? del theta angular displacement into radius. Okay. Then the next concept is angular velocity. The great concept. क्या है? एंगुलर वेलोसिटी भाई. कैसे जाएंगे? एंगुलर वेलोसिटी है. नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी.
angular velocity. This is omega, W no omega, angular velocity. Then the linear velocity of V equal to dx by dt or ds by dt or simple s by d is the velocity linear. Linear displacement out time. Linear displacement divided by time is linear velocity. Simply as angular displacement by time. Angular displacement by time is known as angular velocity. तो ग्राफ इस देखिएगा. Suppose this is p0. तो रेडियस क्या है बात भाई? इथु p1 को ऐसी और this is suppose θ1. ओके तो एबे p1 रो p2 को ऐसी और this angle is θ2. Okay, so this angle is a small angle. θ2 minus θ1 is del theta, and there is a time t. In p2 time is t plus कितने del t, t1 equal to t. तो p2 this जूम कर लिखा है this is small time. टाइम कितने p1 to p2 कितने t2 t2 minus t1. t2 क्या है टाइम t plus del t minus t. it cancel by del t. del t is the time. Okay, small time it will be small time. तो ठीक है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? θ2 minus θ1 by t2 minus t1. This is average angular velocity क्या है? del theta by del t. This is average angular velocity. Average angular velocity. If del t tends to 0, if del t tends to 0, this velocity became instantaneous angular velocity. If del t tends to 0, make us assume totally. So this is known as instantaneous angular velocity. So instantaneous angular velocity क्या है? ओमेगा. क्या भाई आएगा? del t tends to 0, del theta by del t equal to d omega by dt. Sorry, d theta by dt. तो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या है? d theta by dt. इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement in time with time डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. तो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो यहाँ इसका यूनिट क्या होता है? इसका डायमेंशन क्या होता है भाई? तो फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी लिख रही. तो इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट. थीटा क्या है? आरडी बाय सेकेंड और अगेन सेकेंड.
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, नो नो नो, थीटा का यूनिट नहीं है, थीटा का है, थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ओके, रेडियन सेकेंड इनवर्स वो है अंगुलर वेलोसिटी का क्या है, एसआई यूनिट। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होता है भाई? थीटा का डायमेंशन नहीं होता है m0 l0 t0 बाई टी, तो क्या आ जाएगा? t-1 है अंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, जिसका डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, सेम है। तो यहाँ एक ग्रेट थिंग देता हूं मैं, इसका यूनिट निकला और इसका डायमेंशन निकला, इसका डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सेम होता है। ओके, ओके, द रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity, the great thing, the great relation between angular velocity and linear velocity। तो एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी बीच में रिलेशन कैसे निकलेंगे हम कैसे? तो देखिए भाई, वी नो लिनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू angular displacement into radius dividing both sides by del t, dividing both sides by del t and taking limit एक आता नहीं जाए, dividing both side by del t and taking limit, dividing both side by del t and taking limit कितना है वो? तो lim del t tends to 0, del s by del t, lim del t tends to 0, del थीटा, आर को फास्ट लिख दो जी आगे, तो lim del t tends to 0, del theta by del t। ओके, तो दिस इज ds by dt और दिस इज ओमेगा, दिस इज d theta by dt। तो ds by dt is linear velocity और दिस इज angular velocity। ओके, theta by dt आशीला फॉर्मूला। तो लिनियर वेलोसिटी क्या है? लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, दिस द कांसेप्ट, सिंपल सा रिलेशन। ए डेराइविंग बोर्ड है अच्छी, दिस डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी। तो लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है? लिनियर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, इसके बाद दो टर्म, ऐसे सिंपल सा टर्म होता है, बहुत अच्छा है। देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसका बीच में रिलेशन कैसे निकले? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वो टी है, टाइम पीरियड। तो टाइम taken by particle to complete one rotation, one revolution, one oscillation. Time taken by the particle to complete one rotation, to complete one revolution, to complete one revolution, to complete one oscillation। oscillation क्या है भाई? oscillation ऐसे होता है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, जब यहाँ स्टार्ट होता है ऐसे जाता है 1, ऐसे आता है 2, ऐसे आता है 3, ऐसे आता है 3, 4, वो है 1 ऑसिलेशन।
1 2 3 4। तो टाइम और सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट होके यहां तक आ जाएंगे तो 1 रिवोल्यूशन वो है। यहां से यहां तक आने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है वो है टाइम पीरियड। The time taken by particle to complete one rotation, one revolution, one oscillation is time period। तो टाइम पीरियड सिंपली सेकेंड होता है, उसका सिंबल टी होता है, उसका डायमेंशन भी टी होता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। भाई क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी एफ होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, एफ होता है, न्यू होता है और यहाँ एन भी होता है फ्रीक्वेंसी। ये सब फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? क्या होता है बचपन की यादें? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है भाई। बचपन में फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, 1/टाइम पीरियड होता है। हो गया फ्रीक्वेंसी भाई, 1/टाइम पीरियड होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा? t-1 होगा। ओके ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा ना, 1/सेकेंड इक्वल सेकेंड इनवर्स, दिस इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बच्चों क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? t-1 होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है। बात वही नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कितना बार घूमता है? 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन होता है? 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होता है? 1 सेकंड में कितना रोटेशन होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितना होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी। तो भाई क्या है फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव, नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सोर्स। जब एक वेव वन मीडियम से नेक्स्ट मीडियम को जाता है, अदर मीडियम को जाता है, तो क्या सब चेंज हो जाता है? वेलोसिटी चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, but frequency does not change। Frequency is the fundamental property of wave, it depends on the source which produce it। all about the frequency। next रिलेशन क्या होता है? इस सब के बीच में रिलेशन क्या होता है? द ग्रेट रिलेशन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इस सब का बीच में रिलेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इस सब के बीच में रिलेशन क्या होता है? व्हाट दे हाउ दे रिलेटेड द ग्रेट रिलेशन। ओ है कैसे होता है भाई? रेडियस आर होता है। जब ऐसे एक बार ऐसे घूम आता है तो एंगल कितना सबटेंडेड करता है सेंटर में? भाई 2 पाई है। जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में 1 रोटेशन आता है, ऐसे 1 रिवोल्यूशन आता है, 1 रोटेशन आता है, तो कितना एंगल सबटेंडेड करता है भाई? 2 पाई r d। टाइम कितना है भाई? t है टाइम पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हुआ है भाई? 2 पाई। टाइम क्या है? t है भाई। बहुत बढ़िया है। तो 2 पाई/t द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। और भाई क्या होता है? वी नो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, so we can write omega equal to 2 पाई न्यू द ग्रेट रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस द रिलेशन। क्या है फोर्थ फॉर्मूला? क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई t और 2 पाई न्यू। ओके 2 पाई न्यू क्या मतलब क्या है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी।
और बारी है किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन का बारी है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम है भाई t1, वेलोसिटी t2, टाइम में यूनिट क्या होता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1। दिस इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? डेल ओमेगा बाय डेल टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो उसके बाद क्या आएगा? इफ डेल टी टेंड्स टू 0, दिस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बिकेम एवरेज। क्या है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बिकेम इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या है? लिम डेल टी टेंड्स टू 0 डी ओमेगा बाय डी टी। तो अल्फा क्या है? डी ओमेगा बाय डी टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा डी टी। तो लीनियर केस में क्या होता है? v इक्वल टू डी वी बाय डी टी। और है बता। ओके, तो नेक्स्ट इसका यूनिट क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? हाउ इट रिलेटेड विथ लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। इसका यूनिट क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? आर डी पर सेकेंड पर सेकेंड। क्या है? आर डी पर सेकेंड स्क्वायर और आर डी सेकेंड माइनस 2 इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन क्या होगा? ओमेगा का डायमेंशन क्या है? टी माइनस 1 बाई टी क्या होगा? टी माइनस 2, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। Great concept. Relation between linear acceleration and angular acceleration. A relation between linear acceleration, a relation between linear acceleration and angular acceleration alpha. linear acceleration और एंगुलर एक्सेलरेशन बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, द ग्रेट रिलेशन। तो सिंपल v इक्वल टू ओमेगा आर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सिंपल है जो टेकिंग derivative on both side with respect to t, तो dv by dt equal to d by dt of omega r। dv by था ऊपर लाइन कंटिन्यू करछि r आसी जाइछि d omega by dt।
डी क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। आर दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई रिलेशन आ गया, क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो सिंपल सा डेरिवेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इस दोनों का बीच में रिलेशन क्या होता है? वही तो रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? 5 में लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। नोट दिस पॉइंट। तो अभी जो रिलेशन है लीनियर वर्सेस एंगुलर, क्या है रिलेशन? अभी एक बार आ जाता हूं, उसके बाद एक ग्रेट कंसेप्ट होगा। वो क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। भाई अच्छा है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, बहुत बढ़िया। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, बहुत बढ़िया। वो क्या है? लीनियर और एंगुलर का बीच में रिलेशन होता है। लीनियर एंगुलर का बीच में रिलेशन वही होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर। बट जब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, रिवर्स हो जाएगा। क्या है भाई? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एल। क्या है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। हाँ, रिवर्स हो जाता है। ओके, तो द ग्रेट टॉपिक, ग्रेट कंसेप्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है? देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, कैसे डिराइव होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे डिराइव होगा? द डेरिवेशन, ग्रेट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ओ है एक सर्कुलर ट्रैक। ओके, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है। ओ है, ये जो एंगल है डेल थीटा है, वो सपोज है P और सपोज है Q। यहाँ वेलोसिटी क्या होता है? ना V1 होता है, यहाँ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी V2 होता है। ओ यहाँ टाइम क्या होता है भाई? यहाँ टाइम T1 होता है, T, यहाँ टाइम T2 होता है, क्या? T प्लस डेल T। तो दिस P टू Q इज वेरी स्मॉल, और V1 का मॉड इक्वल टू V2 का मॉड सेम होता है, कांस्टेंट स्पीड में V लेट 2 मीटर पर सेकंड स्पीड जाता है। ड्यू टू डायरेक्शन दिस वी इंडिकेट V1 और V2, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, 2 होता है। तो P एंड Q वेरी क्लोज, स्मॉल, डेल T वेरी आसपास है, पास में जूम कर देखे टी बहुत पाखे अच्छी, तो केटा आसीबो एटी डेल T इज वेरी स्मॉल, डेल T इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, डेल T इज वेरी स्मॉल। तो PQR इक्वल टू PQ कॉर्ड, PQR इक्वल टू PQ कॉर्ड।
तो वेरी स्मॉल। ओके, ठीक है। तो कंटिन्यू आगे। तो कंस्ट्रक्ट ए एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए, कंस्ट्रक्ट एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी पैरेलल and equal to V1. Draw AB parallel and equal to V1. First one is construct a point केते A, external point A. A गोटे external point construct करछे। ओके, A गोटे external point एटी construct करली, तो तापर कोन करली, ड्रॉ करली, ड्रॉ करबी AB, AB parallel and equal to केते V1. Then AC parallel and equal to V2. Now join BC. This is del theta. There is nothing else. Draw a external point. Draw a external point A. Draw a external point A. Construct a external point A. Draw AB equal and parallel to V1. Draw AC equal and parallel to V2. Then join this. So by triangle law, this AB plus BC इक्वल टू AC। AB BC कितना है, AC माइनस AB, BC इक्वल टू V2 माइनस V1। ओके, इक्वल टू डेल V। तो BC इज डेल V, V2 माइनस V1, BC इज डेल V। क्लियर कंटेंट। ओके, कॉन्स्टेंट इज ओवर। देन ये दो ट्रायंगल के सिमिलर होगा, कैसे होगा सिमिलर भाई, सिमिलर होगा कैसे, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ABC। क्या है, POQ इक्वल टू BAC इक्वल टू डेल थीटा एंड OP, दिस इज R भाई, OP by PQ इक्वल टू AB by BC। So now triangle this and this are similar. Triangle OPQ, sorry, congruent not similar to triangle ABC. Then this triangle this similar एगला परे आसी कोन corresponding side ର ratio same आसीबो। तो corresponding side same क्या है, PQ by BC, PQ is del S, right? This is del S, PQ del S, linear displacement। कुआ जाइछि जे PQ arc length जा हबो, PQ chord length से हबो। Due to small time is very small, PQ BC equal to एबड आसीबो PQ AB by PQ by BC, OP by AB, OP by AB। तो AB is V1, this also equal to V1, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्या, V1 का मॉड इक्वल टू V2 का मॉड इक्वल टू V। PQ क्या है, डेल S, BC क्या है, डेल V, BC क्या है यहाँ डेल V, OP क्या है R,
ए बी क्या है ना भी, भाई हो गया, तो इसको क्रॉस कर दो, डेल एस भी इक्वल टू डेल वी आर, डिवाइडिंग बाय डेल टी एंड टेकिंग लिमिट, डिवाइडिंग डेल टी ऑन both side and taking limit. तो लिम भी हंस जो बाहर को, लिम डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एस बाय डेल टी आर पड़ेसला लिम डेल टी टेंस टू जीरो, डेल वी बाय डेल टी। हेलो क्या है भाई, भी दिस इज डी एस बाय डी टी, आर दिस इज डी एस बाय डी टी, ठीक है जी। जैसे डी वी बाय डी टी क्या है, डी वी बाय डी टी, ओके, भी डी एस बाय डी टी जी भी इक्वल आर डी वी बाय डी टी इज एक्सेलरेशन, ओके, डी वी बाय डी टी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो भाई क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू आर ए, तो ए इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, दैट टॉपिक इज कम, v स्क्वायर बाय आर हो गया भाई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकला है, v स्क्वायर बाय आर, दिस डेरिवेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या आ गया, v स्क्वायर बाय आर, नोट दिस पॉइंट, ओके। तो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अब इसका भगवान का रूप होता है माया रूप, क्या रूप, माया रूप आ जाएगा, माया रूप क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v स्क्वायर बाय आर, वो है माया का रूप, माया रूप आ जाएगा कैसे, तो यू नो v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो क्या होगा, ए ओमेगा आर का स्क्वायर का बाय आर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, आर मर गया भाई, ओमेगा स्क्वायर आर, वो भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। अभी और एक ग्रुप होता है भगवान का, क्या है, ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई टी है, तो यहाँ क्या है 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, अगर कुल आर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आर, वो भी एक ग्रुप होता है। अभी 1 बाई टी स्क्वायर भी और एक ग्रुप होता है, 1 बाई टी स्क्वायर क्या है ना, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है भाई, क्या है 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आर, वो भी एक ग्रुप होता है, 1 2 है और 3 4 है, और सब फॉर्म है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का सब है, ऑल द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ओके। तो नेक्स्ट वी गो टू द कांसेप्ट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। तो फोर्स क्या होता है भाई, सेंटीमीटर फोर्स होता है क्या, बहुत बड़ा धमाका है, वो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक ग्रेट कांसेप्ट इन बोर्ड 11 क्लास स्कूल में आएगा एक क्वेश्चन डेरिवेशन का, सेंटीमीटर फोर्स द ग्रेट कांसेप्ट, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज द ग्रेट कांसेप्ट। तो फोर्स क्या होता है भाई, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मां, आगे फॉर्मूला लिख दो आपने कंटेंट कोई भी, एम ए होता है क्या, v स्क्वायर बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर आ गया सेंटीमीटर फोर्स का फर्स्ट फॉर्मूला। और अभी भी क्या है, एम ए भी क्या है, भी है ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, तो क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर क्या है, आर आर कैंसिल आर है, वो भी एक फॉर्मूला है, वो है सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। और यहाँ है क्या, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी है, तो क्या होगा एम 2 पाई बाई टी का स्क्वायर आर, एम कहता नाउ एम 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आर, ओके। तो फिर आ गया क्या, एम 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आर, ओके। और ऑल अबाउट द सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है भाई, क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स,
when a particle moving in a circular path, each and every point its direction must change. Without changing the direction, a particle cannot revolve in a circular path. But according to Uncle Newton, direction cannot change without help of a force. Therefore, when a particle revolves in a circular path, it changes its direction each and every point with the help of a force, and this force acting along the radius to the center and help the particle rotate in a circular path, which is essential for a particle rotate in a circular path, and this force is known as centripetal force, which is acting along the radius and toward the center. Okay, a great concept. तो और एक छोटा सा बात है, देखिए ये तो सब है, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का बात है। और आ जाएगा क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वेरिएबल स्पीड में जाता है तो क्या होगा भाई, बहुत सारा हो जाएगा। क्या एक पार्टिकल एक सर्कल में सर्कुलर मोशन करता है विथ नॉट कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड में जाता है तो क्या होगा भाई, वेरिएबल स्पीड में जाता है तो क्या होगा, क्या होगा, वेरिएबल स्पीड, यहाँ स्पीड तो 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो वेरिएबल स्पीड में जाता है तो क्या है, दो टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ए है टेंजेंटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना, इसके लिए एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो है टेंजेंटल एक्सेलरेशन। ऐसे है टेंजेंटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का चेंज है तो आसान है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या होगा ना, अल्फा आर, शॉर्ट लिखो टेंजेंटल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन आता है क्या ऐसे, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो रेडियल एक्सेलरेशन को जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और क्या है द रेडियल एक्सेलरेशन, वो क्या है ना v स्क्वायर बाय r। ये दोनों एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, at परपेंडिकुलर टू ac, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर का रूट। कैसे ही होता है भाई, जब वेरिएबल स्पीड में जाता है एक पार्टिकल, जब वेरिएबल स्पीड में जाता है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो है टेंजेंटल एक्सेलरेशन, वो है टेंजेंटल एक्सेलरेशन। क्या होता है भाई, टेंजेंटल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, ओके, dv बाय dt, तो dv क्या होता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, dv बाय dt है तो वेलोसिटी क्या है, r, कितने ओमेगा r, ओमेगा r हो जाता है। देखिए भाई r आ जाएगा नीचे, d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा बाय dt, तो क्या है r अल्फा होता है, यहाँ r अल्फा होता है। और एक ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन दो एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर होता है, तो नेट एक्सेलरेशन ऐसा आता है। जय जगन्नाथ, नेक्स्ट वीडियो में